India's GDP growth remains resilient and robust as reflected in our projection of 7% growth for the current year. Third, on the inflation front, the summer of 22 is behind us. We have made significant progress in bringing down inflation. The steady decline in core inflation indicates that monetary policy is working. But don't rush into any conclusion. Please wait for the next point. The fourth point is moving forward, inflation management cannot be on autopilot. The future path is expected to be clouded by uncertain food prices. CPI data for November is expected to be high. 5. The MPC will be highly alert to any signs of derailing of the ongoing disinflation process. Based on evolving situation, the MPC will take appropriate action to reach the 4% target. 6. Liquidity will be actively managed consistent with monetary policy. 7. The balance sheet of the financial sector remains robust. Sectoral and institution-specific signs of stress are being proactively monitored and addressed. We do not wait for the house to catch fire and then act. Prudence at all times is our guiding philosophy. 8. Current account deficit is expected to be modest and comfortably financed. 9. Foreign exchange reserves at $604 billion provide a strong buffer against global spillovers. 10. The stability of the Indian rupee reflects the improving macroeconomic fundamentals of the Indian economy and its resilience in the face of formidable global tsunamis. राघोगढ़ में आयोजित रोड शो एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने की सहभागिता। देखिए इस वीडियो में। एचएम अमित शाह ने एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली का उद्घाटन किया एवं सभी को संबोधित भी किया। देखिए इस वीडियो में। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा सुना, मेरे जीवन में से 30 साल निकलकर मैं 30 साल छोटी आयु का हो गया। मुझे मालूम है मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के खुले अधिवेशन में बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मैं विश्व के एकमात्र छात्र संगठन जो शिक्षा जगत की खामियां और दूषणों को दूर करने के लिए संघर्ष तो कर ही रहा है, साथ में चरित्र निर्माण का यज्ञ भी चला रहा है, वो विद्यार्थी परिषद के सामने बोल रहा हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा हो। मेरे लिए सच अर्थ में विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के वर्ष में
इसके राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत बहुत गौरव आनंद का विषय है। मैं स्वागत समिति का इसके लिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में P&RD विभाग का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा किया सभी को संबोधित। देखिए इस वीडियो में। তেনেকে আমিও কৰিম বা আমি কৰাৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়িছো। উৰণীয়া ক্ষেত্ৰসমূহৰ কথা মই নকওঁৱে। আমি মেডিকেল কলেজৰ দৰে বা এতিয়া আমি আৰু এটা পৰ্যায়ত গৈ আছো যে আইকনিক প্ৰজেক্ট গুৱাহাটীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামটোক আমি এটা আইকনিক প্ৰজেক্টলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছো। বিমান বন্দৰৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীলৈ সোমোৱা ৰাস্তাটো বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে আমি 6 লেনিং কৰিব খুজিছো। বাৰাণসীত যেনেকে কাশীত কৰিডৰ হৈছে মন্দিৰত, তেনেকে কামাখ্যা মন্দিৰত কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ আজি আমি সাধাৰণতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নকৰা আমি চ্যালেঞ্জিং प्रोजेक्ट्स বিলাক আমি বৰ্তমান হাতত লৈছো। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि करप्शन का पैसा सीधे नेताओं की जेब में जाता है। देखिए इस वीडियो में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार की पाई पाई जो कि जनता की गाड़ी कमाई है उसको वसूलेंगे। सभी चैनल्स पर, सभी न्यूज़पेपर में एक खबर बड़ी प्रमुखता से सामने आई है। झारखंड में कांग्रेस सांसद हैं धीरज साहू, जो समाचार आ रहे हैं शराब निर्माता समूह बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, इस पर आईटी रेड हुई है जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली। जो तथ्य सामने आए हैं ये बड़े ही चिंताजनक हैं। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली। मैं पुनः कहूंगा 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर देहरादून के कनक चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल विपिन रावत देश का गौरव थे। CDS जनरल विपिन रावत ने 4 दशकों तक मातृभूमि की रक्षा में निस्वार्थ सेवा की। उन्हें सदैव असाधारण वीरता तथा साहस के लिए याद किया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल, उप निदेशक कर्नल MS जोधा ने मुख्यमंत्री धामी को फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहने वाले अपने वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र
सेना झंडा दिवस का यह अवसर राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी दिन है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप की 17 प्रजातियों की 4000 बल्ब के रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पिछले वर्ष सीएम आवास परिसर में ट्यूलिप की 4 प्रजातियों के 400 बल्ब रोपित किए गए थे। मुख्यमंत्री आवास में इस वर्ष ब्लैक पर्पल बाइकलर प्रजाति के ट्यूलिप आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप बागवानी के व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंडल रेल प्रबंधक आगरा द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बात का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डीआरएम द्वारा मथुरा रिफाइनरी की गैंट्री देखी, कार्यशैली व सुरक्षा संबंधी जानकारी ली व गाड़ी के संचालन में गतिशीलता, समयबद्धता, सुरक्षा तथा नियमों का समुचित पालन करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान बाद रिफाइनरी परिसर में वृक्षारोपण किया गया। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा लोडिंग पॉइंट का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत लाइनों का विजिट किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रिफाइनरी से लोडिंग के वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में मीटिंग हुई। लोडिंग बढ़ाने व गाड़ी के संचालन में गतिशीलता, समयबद्धता के बारे में चर्चा की। उसके उपरांत बाथ स्टेशन पर मैकेनिकल कैरिंग एंड वेगन डिपो एवं बाद एक्सचेंज यार्ड का निरीक्षण किया गया। वहां पर मथुरा गुड्स शेड बंद के दौरान लोडिंग किया जाना प्रस्तावित है। आगरा मंडल रेल प्रशासन द्वारा हॉलिडे स्पेशल एक तरफा ट्रेन संचालन करने का निर्णय लिया गया है। गोरखपुर से गाड़ी संख्या 05089 दिनांक 8 दिसंबर से एक फेरा लगाएगी, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। सामान्य कोच 7, शयनयान कोच 7, वातानुकूलित कोच 2, SLR कोच 2 रहेंगे, जो कि गोरखपुर स्टेशन पर से इसका प्रस्थान 13:30 पर होगा। खलीलाबाद पर इसका आगमन 14:10 पर और प्रस्थान 14:12 पर होगा। बस्ती में आगमन 14:35 पर और प्रस्थान 14:40 पर। गोंडा जंक्शन में आगमन 16 बजे और प्रस्थान 16:05 पर। ऐशबाग में 18:45 पर आगमन, 18:55 पर प्रस्थान। कानपुर सेंट्रल में 20:35 पर आगमन, 20:40 पर प्रस्थान। टूंडला जंक्शन में रात को 12:05 पर आगमन, 12:10 पर प्रस्थान। आगरा किला में 12:55 पर आगमन, रात को 1 बजे प्रस्थान। भरतपुर जंक्शन पर रात को 2:15 पर आगमन, 2:20 पर प्रस्थान। बांदीकुई में 5:10 पर आगमन, 5:15 पर प्रस्थान और जयपुर पर इसका आगमन 6:30 बजे होगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने BFU में फरीदकोट के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की, साथ ही सभी को संबोधित किया। देखिए इस वीडियो में। पहले सां तो ही इस तरह दी सहूलतां मिलन के वो बच्चा तंदुरुस्त होवे, तंदुरुस्त होके वड्डा होके वो अपने माँ प्यो का, अपने पिंड का, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने देश का नाम रोशन करे। 10,000 बच्चों ने टेस्ट दिता सी, उहदे चों 250 सिलेक्ट हुए ने। बहुत वड्डी गल है ये। कोई लॉबिंग नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। 250 टॉप क्रीम ला लो, जिमें कहा जाता कि जो नर्सिस या नर्सिंग के जोड़े प्रोफैशन च जिन्ने भी ने वो किसी भी हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी होंगे। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। इसमें उन्होंने कई साल पहले आई बीमारी का जिक्र किया। कहा कि पहले सरकारी हॉस्पिटल की हाल बदहाल था। देखिए इस वीडियो में। सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन जब एक बार मिलकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएंगे, कोई कारण नहीं कि भारत फिर से शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में फिर से दुनिया के सामने
विश्व गुरु के रूप में स्थापित न हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रतिभा ऊर्जा से भरपूर है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा हमारे देश में है और हमारे देश में सबसे अधिक युवा हमारे प्रदेश में है। तो स्वाभाविक रूप से इस ऊर्जा का उपयोग हम नेशनल बिल्डिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, इसी दिशा में जो नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज हम लोगों के लिए बड़े अनुकरणीय बन सकते हैं। आपने देखा होगा, मुझे याद है हमारे ईस्टर्न यूपी में एक बीमारी आई थी 1977 में, और 1977 से 2017 तक उस बीमारी में 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। मैं जब 1998 में पहली बार सांसद बना था गोरखपुर से, तो मुझे हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने फोन किया, कहा कि आप सांसद बने हैं, आपने कभी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया? मैंने कहा नहीं। तो कहा कि एक बार मेडिकल कॉलेज का दौरा करते तो वहां की स्थिति को देखते तो आपको थोड़ा पता लगेगा। तो मैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। बड़ी दुर्व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था, तो वहां के प्रिंसिपल ने प्रयास किया पहले कि मैं वहां न जाने पाऊं, वार्ड में न जाने पाऊं। लेकिन खैर मैं वार्ड में गया, देखा मैंने बड़ी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, बदबू थी। जून का महीना था, भीषण गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, टॉयलेट चौक थे, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए। मैं वहां से निकला, प्रिंसिपल तब तक मेडिकल कॉलेज से अपने घर जा चुके थे। दिल्ली मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पढ़ी लिखी सरकार पहली बार जनता के साथ बजट डिस्कस करेगी। देखिए इस वीडियो में। जनता ने बड़ा विश्वास दिखाकर, भरोसा जताकर हमें नगर निगम में चुना है। दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। अब जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बार पहली बार बजट जो है वो हम हाउस में पेश करने जा रहे हैं, जो कल 9 दिसंबर को सदन में बजट को पेश किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो बजट पेश करने से लेके जो फाइनल करने तक की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 महीने तक पूरी प्रक्रिया चलती है। पर इस बार आम आदमी पार्टी की पढ़ी लिखी सरकार है, तो इस बार हम लोग दिल्ली की जनता के साथ बजट पर चर्चा करना चाहेंगे, दिल्ली की जनता की सलाह लेना चाहेंगे और दिल्ली की जनता के साथ चर्चा करने के बाद ही बजट को फाइनल किया जाएगा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसका बजट का इम्पैक्ट जिन पर पड़ने वाला है, जैसे जितने भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, जितना हमारी युवा पीढ़ी है, यूथ है, जिनके लिए हम रोजगार के अवसर हम जो क्रिएट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, RWAs हैं, अनऑथराइज इलाकों की जनता है, JJ क्लस्टर्स की जनता है, साथ ही 360 गाँव के जितने भी प्रधान हैं, जो ग्रामीण इलाके के, दिल्ली के जितने भी अर्बन विलेजेस हैं, उनके प्रधानों के साथ तमाम जितने भी पार्षद हैं, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इन 2 महीने के दौरान हम लगभग 50 से 100 मीटिंग्स हम लोग करने जा रहे हैं। और इन्हीं स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने के बाद, इनके साथ डिटेल में चर्चा करने के बाद ही उसी आधार पर हम इस बार पारदर्शिता तरीके से बजट को फाइनल करेंगे। भूपेंद्र पटेल ने योगीराज प्रगति मंडल द्वारा आयोजित रावल योगी समाज के 3रे सामूहिक विवाह समारोह में सभी को संबोधित किया। देखिए इस वीडियो में। बधाई साथे आगळ વધવાની વાત છે। હર હંમેશ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ નાનામાં નાનો માણસ હોય, છેવાડાનો માણસ હોય, એ મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે આવે એના માટેના હર હંમેશ પ્રયત્ન કર્યા। અને અત્યારે પણ આખા દેશમાં જે અમૃતકાળમાં આપણે વિકસિત ભારત બનાવવું છે, તો એ વિકસિત ભારત બનાવવા માટે આજથી જ એમના પ્રયત્નો શરૂ થયા છે।
અને એ પ્રયત્નોમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા શરૂ કરી. તમને બધાને ખબર છે, ગામે ગામ આવે છે અને આ વિકસિત ભારત યાત્રામાં, સંકલ્પ યાત્રામાં એટલો જ એમ છે કે ભાઈ સરકારી જેટલી યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનો લાભ તમારા સુધી પહોંચે અને કોઈ વંચિત હોય તો એના આ યાત્રા દરમિયાન એનું એ કાર્ડ મળી જાય. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया. कहा कि यह दौर उत्तराखंड का है. देखिए इस वीडियो में. कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है. और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं. आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है. बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं. साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है. और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है. मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौद्रिक नीति के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह 2023 में जीडीपी में 7% की ग्रोथ हुई है. देखिए इस वीडियो में. Okay, I would like to make a few observations to capture the essence of today's monetary policy. And I would like to make a few points. First, the years 2020 to 2023 will perhaps go down in history as a period of great volatility. Number two, India's GDP growth remains resilient and robust as reflected in our projection of 7% growth for the current year. Third, on the inflation front, the summer of 22 is behind us. We have made significant progress in bringing down inflation. The steady decline in core inflation indicates that monetary policy is working. But don't rush into any conclusion. Please wait for the next point. The fourth point is, moving forward, inflation management cannot be on autopilot. The future path is expected to be clouded by uncertain food prices. CPI data for November is expected to be high. 5. The MPC will be highly alert to any signs of derailing of the ongoing disinflation process. Based on evolving situation, the MPC will take appropriate action to reach the 4% target. 6. Liquidity will be actively managed consistent with monetary policy. 7. The balance sheet of the financial sector remains robust. Sectoral and institution-specific signs of stress are being proactively monitored and addressed. We do not wait for the house to catch fire and then act.
prudence at all times is our guiding philosophy. 8. Current account deficit is expected to be modest and comfortably financed. 9. Foreign exchange reserves at US $604 billion provide a strong buffer against global spillovers. 10. The stability of the Indian rupee reflects the improving macroeconomic fundamentals of the Indian economy and its resilience in the face of formidable global tsunamis. राघोगढ़ में आयोजित रोड शो एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने की सहभागिता। देखिए इस वीडियो में। एचएम अमित शाह ने एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली का उद्घाटन किया एवं सभी को संबोधित भी किया। देखिए इस वीडियो में। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा सुना, मेरे जीवन में से 30 साल निकलकर मैं 30 साल छोटी आयु का हो गया। मुझे मालूम है मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के खुले अधिवेशन में बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मैं विश्व के एकमात्र छात्र संगठन जो शिक्षा जगत की खामियां और दूषणों को दूर करने के लिए संघर्ष तो कर ही रहा है, साथ में चरित्र निर्माण का यज्ञ भी चला रहा है, वो विद्यार्थी परिषद के सामने बोल रहा हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा हो। मेरे लिए सच अर्थ में विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के वर्ष में इसके राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत बहुत गौरव आनंद का विषय है। मैं स्वागत समिति का इसके लिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में P&RD विभाग का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा किया सभी को संबोधित। देखिए इस वीडियो में। তেনেকে আমিও কৰিম বা আমি কৰাৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়িছো। উৰণীয়া ক্ষেত্ৰসমূহৰ কথা মই নকওঁৱে, আমি মেডিকেল কলেজৰ দৰে বা এতিয়া আমি আৰু এটা